Good morning, everyone. So, the topic for today's lecture is crystal field theory in octahedral complexes. First of all, we will do its postulates. So, first postulate for the crystal field theory is this, that is, in valence bond theory, it is believed that the metal ligand bond is covalent, but crystal field theory considers the bond to be ionic, arising purely from the electrostatic interaction between the metal ion and the ligands. So, the first postulate is that the bonding between the metal and ligand is purely electrostatic, and hence we will consider them as point charges. Metal is acting as cation, positively charged ion, whereas your ligands can be negatively charged or dipoles. So second postulate for the crystal field theory is the central metal cation is surrounded by ligand which contains one or more lone pair of electrons. As we all know, ligands have excess electron density in terms of lone pairs, so they transfer their electron density to the metal atoms. Now the third postulate is that the ionic ligand, fluoride, chloride, etc., are regarded as point of negative charges and neutral molecules. When they are regarded as negative charges, so what type of interaction is that? That is ion-ion type interaction. But when they regarded as neutral molecule, they act as point dipoles. So what type of interaction? That is dipole ion interaction or ion dipole interaction. So electrons of the ligand does not enter the metal orbital. This is the fourth postulate. Thus there is no orbital overlap takes place. And coming to the fifth postulate, the magnetic properties depend upon the splitting of d orbitals of the central cation in different crystals. Now coming to the sixth postulate, the color of the complexes are explained in terms of electronic transitions. Okay, bache? And now coming to the seventh, it also explains why certain geometries are more favored than by the central metals. All these postulates we will discuss later on, and we will explain all these postulates on the basis of crystal field theory. So coming to our first topic, that is crystal field splitting in octahedral complexes. Now in octahedral complex, we have positively charged cation at the center and negatively charged ligands on the axis of the octahedron. So, we observe the repulsion between the electrons in d orbitals of metal and ligand electrons. So, bache, what happens? See, our there is electrostatic interaction. So there is an interaction between the metal and the ligand. So when ligand approaches the metal ion, there is repulsion किसके बीच में होगी बच्चे? Repulsion is between the lone pair of electrons and the electrons that are present in the d orbitals of the metals. Okay, so when there is a repulsion, there is splitting of the degenerate d levels. Before we have degenerate d orbitals, but when ligand approaches the metal, then there is a splitting of d orbitals. That is, our degenerate level now split into two levels. And how splitting, which कौन सा डी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, that we will see. देखो क्या होता है. In case of dx square minus y square and dz square, these orbitals are present on the axis, so they will experience more repulsion, and because of the more repulsion, their energy is increased. So they have higher energy than the average energy of the spherical crystal field, whereas dxy, dyz and dxz orbitals experience lower repulsion. Why they experience lower repulsion? Because they are present in between the axis. Okay, so when they are present in between the axis, there is no direct interaction with the ligands, and so therefore there is very less repulsion. So these three orbitals have less energy than the average spherical crystal field.
So we observe the splitting of D level in two levels, that is T2G and EG level. T2G level comprises of dxy, dyz and dxz, whereas EG level comprises of dx square minus y square and dz square. EG is with higher energy, whereas T2G is with lower energy. So coming to the diagram, see, when we have free metal cation, so its energy lies here. But when ligands approaches the metal cation, there is a uniform distribution and there is a spherical field of the ligand. In the spherical field of the ligand, the energy of the free metal cation is raised to this level. And after that, we know in case of transition metal complexes, we have different geometries like octahedral, tetrahedral and square planar geometries. In all these geometry, there is no spherical field of the ligands. Ligands are pointed at particular direction. In case of octahedron, the ligands are present at the vertices of the octahedron. That's why there is no spherical field and they will affect the d orbitals differently. That's why dx square minus y square and dz square, which are present on the axis, we will see a raise in energy, whereas in case of dxy, dyz and dxz, there is decrease in energy. So this level is your T2G level. So this level is your T2G level, whereas this level is your EG level. So these are the structures of the d orbitals. Here dx square minus y square and dz square belongs to EG orbital, whereas dxy, dyz and dzx belongs to the T2G level. So now coming to their energies, the difference in the energy in two levels, that is in the level T2G and the level EG, can be defined as delta, or more uh, or we can also say that as delta naught, or we can say the total energy difference between the two levels is 10 dq. So what is the energy level of EG and T2G with respect to the central line? The energy level EG is raised by an amount of 6 dq or 0.06 delta naught, and the T2G level is stabilized by minus 4 dq or minus 0.04 dq. Or we can say there is a raise of energy by 3 by 5 delta naught and decrease in energy by 2 by 5 delta naught. So these are the energies of level EG and T2G. And why we have put why we have used G? Because G is for Girardet and this is for the symmetrical field. This symbol is used for the symmetrical field. In case of tetrahedral field, we don't use G. So now our total splitting is 10 dq. EG is our higher level, higher energy set, whereas T2G is our lower energy set. And EG comprises of dz square, dx square minus y square, where T2G comprises of dxy, dyz and dxz. And the energy of EG orbitals, that is the EG orbitals are repelled by an amount of 0.6 delta naught, whereas our T2G orbitals are stabilized by an amount of 0.4 delta naught. Now coming to the crystal field stabilization energies, see, देखो बच्चे क्या होता है, when the electron enters to the
T2G लेवल, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन T2G लेवल में एंटर करेगा, so it will stabilize the energy because T2G level has energy of -4 dq. For each electron there is a decrease in energy with -4 dq, whereas जब आपका इलेक्ट्रॉन EG लेवल में जाएगा तो there is increase in energy by 6 dq. So T2G level में जब आपका इलेक्ट्रॉन जाता है, it will stabilizes the geometry, whereas when the electron goes into the EG level, it destabilizes the geometry. So this is written here. See, when each electron goes to the lower T2G level, it stabilizes the system by an amount of -4 dq, whereas when the electron goes into the EG level, it destabilizes the system by +6 dq. Okay, so now net change in the energy for D5 and D10 system is 0. We can calculate it by using the crystal field stabilization energy. For D5 system, let me draw. For D5 system, we have this, and each orbital is having one electron. This is our T2G level and this is our EG level. So in T2G level, we have energy of -4 dq, whereas for EG level we have energy of +6 dq. So applying these energies to the electrons, in case of D5 we have 3 electrons in T2G into -4 dq, this is the energy for T2G level, and +2 into 6 dq, 2 electrons in EG level into 6 dq is the energy of the EG level, so it is coming to be 0. Similarly for D10 we have net energy, that is 0. So coming to the crystal field stabilization energy, here we have calculated the crystal field stabilization energies for various electronic configuration. Like for D1 we have 4 energy, whereas for D2 we have 8, and for D3 we have 12 energy. So these energy is in minus, so minus dq is written here, so minus is omitted. Whereas in case of D4 we have two different types of energy. Why is this? Because बच्चे देखो, we have two types of field, weak field and strong field. First of all we will do this and then we will calculate the energies for rest of the systems. So what is weak field, what is strong field? This depends upon the strength of the ligands. So we have various ligands which are arranged in the increasing order of their field strength, and this series is known as spectrochemical series that arranges the ligands in the order of their field strength. And here first of all we have halide ions, and then in the middle we have oxygen based ligands, and then we have nitrogen based ligands, whereas in the end we have carbon based ligands. So carbon based ligands are the strongest one, whereas oxygen and halide based ligands are the weakest one. So on the basis of this on the basis of strength of the ligands, we can define which type of field can be possible, whether weak field is possible or strong field. So for this we will explain it with a diagram. Let's say this is the spherical field of ligands. Okay, in case of strong field there is large splitting because the ligand is strong, and it will causes more interaction, more repulsion to the metal d orbitals, and the level splitting is large in case of strong field. This is our EG level and this is our T2G level. So this is large in case of strong field. Here we have used strong field ligands, whereas this splitting is low in case of weak field.
सो बच्चे ऐसा क्यों होता है? देखो, जब हमारे पास वीक लिगेंड्स होंगे तो वहाँ पर जो वीक लिगेंड्स होंगे वो मेटल के साथ, उनकी जो रिपल्शन होगी मेटल के साथ वो कम होगी, इसलिए स्प्लिटिंग भी कम होगी। और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं तो जो उनकी इंट्रैक्शन होगी मेटल के साथ वो ज़्यादा होगी, इसी वजह से वहाँ पर स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी। अब क्या होता है, इन वीक फील्ड वी हैव डेल्टा नॉट less than pairing energy, and whereas in case of strong field we have delta naught greater than pairing energy. So what is pairing energy? Pairing energy is the energy required to pair up the electron. Now first of all we will discuss this pairing energy in case of weak field. So देखो क्या होता है बच्चे, जब आप D4 सिस्टम की बात करते हो तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी फिल कर लिए, बट जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है हमारा उसके पास दो ऑप्शंस हैं। आइदर वो ईजी लेवल में जंप कर सकता है और वो T2G लेवल में ही पेयर अप हो सकता है। तो वीक फील्ड के केस में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इट विल गोज टू दी हायर ईजी लेवल। वाई? बिकॉज क्या होता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पेयर अप करने के लिए दैट इज लार्जर देन दी difference in the two level. ठीक है, let's say we have pairing energy of 10 and we have difference in the energy is just 5. So when we provide energy, so क्या होगा, first of all 0 1 2 3 and 4 and 5 आएगी एनर्जी, तो 5 जैसे ही एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन का इट विल जंप टू दी हायर लेवल। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड देखो क्या होगा, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी। पी हमने 10 माना था, लेस से हम डेल्टा नॉट को क्या मानते हैं बच्चे, 20। सो क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करते हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ईजिली फिल हो जाएंगे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, जब आप उसको एनर्जी दोगे, ठीक है, तो जैसे जैसे आप उसको एनर्जी दे रहे हो 0 1 2 3 आप 10 पे आए, तो 10 पे उसको एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो किसके इक्वलेंट होगी, पेयरिंग एनर्जी के। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना पसंद करेगा एज़ कम्पेयर टू जंप करना। आप बच्चे सिंपल वर्ड्स में इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो डिफरेंस है लेवल्स में वो इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाता है, वो क्या हो जाएगा, वो पेयर अप हो जाएगा T2G लेवल में। ठीक है बच्चे, सो यहाँ पर क्या हुआ, व्हेन डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी, that is our strong field, there is low spin complexes. When delta naught is less than p, we have weak field and high spin complexes. Now why we are calling strong field as low spin complexes and weak field as high spin complexes? देखो बच्चे क्या होता है, वीक फील्ड में आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, जो स्पिन होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनपेयर्ड होंगे ज़्यादा। तो अगर आप हर इलेक्ट्रॉन की स्पिन काउंट करो, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ पर 4 इंटू स्पिन हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ स्पिन ज़्यादा होगी। वेयर इज़ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड वी हैव लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन क्यों होता है बच्चे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके पास स्पिन कम होती है एज़ कम्पेयर टू वीक फील्ड। यहाँ पर क्या है आपका, अगर आप देखो जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप हो गए तो उनकी स्पिन कैंसिल होगी, वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स और उनकी स्पिन अब काउंट होगी। ठीक है बच्चे, सो इन केस ऑफ strong field we have low spin complexes and in case of weak field we have high spin complexes. Now in case of weak field Hund's rule is followed. वाई बच्चे, बिकॉज हुंस रूल क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास सिंगली फिल्ड होंगे ऑर्बिटल एंड उसके आफ्टरवर्ड्स पेयरिंग स्टार्ट होगी। सो इसमें क्या होता है, आफ्टरवर्ड्स पेयरिंग स्टार्ट होती है, वेयर एज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड हम पहले ही पेयरिंग कर रहे हैं, सो इट डज नॉट फॉलो हुंस रूल। सो बच्चे यहाँ पर वही है, दैट इज़ नेचर ऑफ लीगेंड। नेचर ऑफ लीगेंड में देखो बच्चे क्या है, अगर आपके पास लीगेंड है विच आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सो क्या होगा, जो आपके पास कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे दीज आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बच्चे, और दे डू नॉट फॉलो हुंस रूल, यही चीज़ हमने कही है। बट इन केस व्हेन आपके पास जो लिगेंड्स होंगे वो वीक होंगे, ठीक है,
तो आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे ऑन एंड दे फॉलो हुंस रूल। यही चीज़ बच्चे यहाँ पर एक्सप्लेन की है, जो हमने अभी फिगर बनाई थी वही चीज़ है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखो, इन केस ऑफ वीक फील्ड देयर इज लेस स्प्लिटिंग and high spin complexes are formed, whereas in case of strong field ligands we have more splitting and low spin complexes is formed. So this is the electronic configuration, these are the transition metal ions, ठीक है, and their electronic configurations. So in case of D1, D2 and D3 we have same option in case of high spin and low spin complexes, whereas in case of D8, D9 and D10 we also have same option, whether low spin हो चाहे high spin हो. In case of high spin बच्चे अगर आप देखो, आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, there is less splitting, whereas in case of low spin there is high splitting. Now coming to electronic configuration D4, D5, D6 and D7. देखो बच्चे, क्या यहाँ पर आपके हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। वो डिपेंड करता है, आपको पता है जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, वहाँ पर आपके पास पेयरिंग हो जाएगी, और आपके वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में, दैट इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग नहीं होती है। मतलब उसमें पहले सिंगली फील्ड होते हैं एंड उसके आफ्टरवर्ड्स पेयरिंग होती है। तो लेट्स अप्लाई, लेट्स से D4, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके फिल हो गए. Now we have option for fourth electron, either it goes into the upper level or it pair up. Similarly in case of D5 we have 5 electrons, वो आपके singly filled होंगे, whereas in case of low spin there is pairing. Now next coming to D6, 5 electrons already filled हो गए, singly filled हो गए, and then afterwards उसकी pairing start हो गई. But in case of low spin all the 6 electrons are in T2G levels. Similarly in D7 we have 5 electrons that are singly filled and afterwards there is pairing. But in case of low spin, first of all 6 electrons are filled in T2G level and then last electron will go to the EG level. ये क्लियर हो गया बच्चे? Now coming to its applications. जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हमने पॉस्टुलेट में भी की थी, दैट इज़ कलर. ठीक है, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं, और अगर आप देखो सेम मेटल में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के डिफरेंट कलर्स होते हैं. लाइक फेरिक ब्राउन कलर का होता है, फेरस येलो कलर का होता है, वेरस जो आपका कॉपर है ग्रीन का, कोबाल्ट ब्लू का. ठीक है बच्चे, सो जो आपके ट्रांजिशन मेटल हैं वो आपके बेसिकली कलर्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स. वो जनरली आपके वाइट होते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. नाउ यहाँ पर देखो बच्चे, आपके पास D1 सिस्टम है. यहाँ पर D1 सिस्टम में हमारे पास ग्राउंड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन है. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन अब्जॉर्ब्स एनर्जी इट गोज टू द EG लेवल इन द एक्साइटेड स्टेट. एंड वी नो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जब भी कोई कलर ऑब्जॉर्ब होगा तो हमारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑब्जॉर्व होता है. तो जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें क्या होता है, एनर्जी ऑब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि उसमें पार्शली फिल्ड, और ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट कम्स इन द विजिबल रीजन, इसीलिए हमें कलर दिखता है. और अगर आप UV प्लॉट करो for this particular titanium complex, so we observe a peak around 420 nanometer. So this is in the visible region and therefore titanium complex is colored in nature. Now coming to the magnetic properties. Now magnetic properties में ये 3 points हैं, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे. First of all, what is diamagnetic compounds? बच्चे diamagnetic क्या होंगे? Diamagnetic compounds होंगे which have paired electrons, whereas जो आपके पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स होंगे they have unpaired electron. ठीक है बच्चे? सो देखो बच्चे, यहाँ पर
सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है अपनी एक्सिस पे, तो वो क्या जनरेट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है जब भी कोई स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन होगा और जो चार्ज, जिसमें चार्ज होगा, दैट इज़ दी electron which is charged, when it spins on its own axis it generates a magnetic field। ठीक है बच्चे। सो जो ये जो आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या एक्ट करेंगे, एज टाइनी बार मैग्नेट। ठीक है। अब इन केस ऑफ डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड अप हैं पर उनकी स्पिन क्या है, ऑपोजिट। तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो नेट उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। इसी वजह से ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक। बट इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक क्या होगा, वी हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा वो रहेगी। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड, सॉरी, जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, सो देयर इज़ अ अट्रैक्शन। सो क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिज्म। सो पैरामैग्नेटिज्म कैन बी कैलकुलेटेड बाय paramagnetic substance is characterized by, we can say, by effective magnetic moment. Effective magnetic moment. एंड जो आपके बच्चे इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू रूट एन इंटू n+2, एंड जो इसकी यूनिट्स होती हैं दैट इज बोहर मैग्नेटॉन। सो वट इज n? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। So if we have unpaired electron 1, 2, 3, 4 and 5, so mu effective in cases में क्या आएगा बच्चे, अगर आपका 1 होगा तो आपके पास 1.73 आएगा। दिस इज इन बोहर मैग्नेटॉन। एंड अगर आपके पास 2 होगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 2.83। 3 होगा तो बच्चे वैल्यू आएगी 3.87। वेयर एज 4 होगा तो वैल्यू आएगी 4.9। एंड इन केस ऑफ 5 वैल्यू जो होगी आपके पास 5.90 होगी। ठीक है बच्चे। सो जो मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो अप टू 5 तक हो सकती है। नाउ अब देखो यहाँ पर आपके पास लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड। अगर आप देखो D1, D2, D3, D8, D9 एंड D10 सिस्टम्स के लिए आपके पास क्या है, एक टाइप की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। उन सभी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चे, सेम होगी। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर, बट इन केस ऑफ D4, D5, D6 एंड D7 वी हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है। इन केस ऑफ लो स्पिन एंड हाई स्पिन, लेट्स से D4 सिस्टम। D4 सिस्टम में अगर आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ पर आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। वेयर एज in case of high spin we have 4 unpaired electrons. So for D4 system we have different electronic configurations for low spin and high spin and different magnetic moment. Whereas in case of D5 low spin complexes में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, but in high spin we have 5 electrons. ठीक है। So we have 5 unpaired electrons in high spin complexes and 1 unpaired electron in low spin complexes. So different magnetic moment. In case of D6, we have 0 unpaired electron in case of low spin, whereas 4 unpaired electron in case of high spin. Coming to D7, we have 1 unpaired electron in low spin complexes, whereas 3 unpaired electron in high spin complexes. So based on number of unpaired electron we can calculate its magnetic moment. Now what are the factors that affect the magnetic moment? Sorry बच्चे, magnetic moment नहीं, factors affecting the delta value, that is crystal field stabilization energy. जो इसमें जो first है that is higher oxidation. अगर आप देखो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझ लेते हैं, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में क्या होगा, देयर इज़ अ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन
एंड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। सो क्या होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, ठीक है बच्चे, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी देयर इज़ अ क्लोज अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स, और व्हेन द लिगेंड्स अप्रोचेस द मेटल आयन, तो जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन हैं दे विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल्स। More the approach, more the closer approach of the ligand, more is the repulsion and more is the CFSC, that is delta value. So जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, दैट इज़ मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। और यहाँ पर बच्चे एग्जांपल्स भी हैं इसके। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो वी हैव अराउंड 10,000 स्प्लिटिंग, but if we have oxidation state 3 we have 22,000 splitting. And in case of iron, अगर हम example लें, if we have ferrous we have 32,000 splitting, and in case of ferric we have 35,000 splitting, ठीक है बच्चे। सो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वी कैन से व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट, oxidation number or oxidation state, when oxidation number increases, what happen, CFSC increases, that is delta value increases, ठीक है बच्चे। now coming to second point, heavier analog have larger delta value। इसका क्या मतलब है, heavier analog means अगर आपका मेटल 3D सीरीज या 4D या 5D सीरीज़ को बिलोंग करेगा तो क्या होगा, जब आप डाउन दी ग्रुप जा रहे हो आपके पास सीरीज़ बढ़ रही है, 3D से आप 4D पे जा रहे हो एंड 4D से 5D पे, तो बच्चे क्या होता है, साइज ऑफ द डी ऑर्बिटल इंक्रीजेज। यहाँ पर क्या है, साइज इंक्रीजेज, एंड व्हेन साइज इंक्रीजेज, जब साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देर इज़ अ ग्रेटर इंटरेक्शन विद द लिगेंड्स, एंड मोर द इंटरेक्शन विद द लिगेंड्स मोर इज़ द रिपल्शन। सो क्या होगा, जब साइज बड़ा होगा देर इज मोर रिपल्शन, एंड व्हेन देर इज मोर रिपल्शन मोर स्प्लिटिंग एंड मोर डेल्टा वैल्यू, ठीक है बच्चे। सो यहाँ पर अगर आप देखो, कोबाल्ट 3D सिस्टम को बिलोंग करता है, रोडियम 4D को एंड इरिडियम 5D को, एंड जब हम डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्रॉम कोबाल्ट टू रोडियम, रोडियम टू इरिडियम, साइज ऑफ द डी ऑर्बिटल इंक्रीजेज एंड देयर इंट्रैक्शन विद द लिगेंड इंक्रीजेज, एंड व्हेन द इंट्रैक्शन विद द लिगेंड इंक्रीजेज देयर इज मोर रिपल्शन एंड मोर स्प्लिटिंग, दैट्स व्हाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा इज इंक्रीजिंग। So from 22, approximately 22,000 to 34,000 to 41,000, there is an increase in delta value. Now coming to the geometry, अब देखो geometry में क्या होता है, जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी जो स्प्लिटिंग होती है दैट इज़ लेस एज कम्पेयर टू दी ऑक्टाहेड्रल वंस। बच्चे ये वाला पॉइंट हमने अभी डिस्कस करना है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, बट आप यहाँ पर एक बार देख लो, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पर 4 लिगेंड्स होंगे और उनकी स्प्लिटिंग कम होगी, वेयरएज जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है वहाँ पर लिगेंड्स ज़्यादा हैं तो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी। सिंपल वे में देखो बच्चे, टेट्राहेड्रल में आपके पास जस्ट 4 लिगेंड्स हैं, तो वो जो आपका मेटल के अंदर जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 4 लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वेयरएज इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल देयर इज अ इंटरेक्शन विद 6 लिगेंड्स। तो क्या होगा, मोर द नंबर ऑफ लिगेंड्स मोर इज द इंट्रैक्शन, मोर इज द डेल्टा वैल्यू। सो ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स हैं, इस वजह से ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी, ज़्यादा रिपल्शन होगी एंड मोर इज द डेल्टा वैल्यू। नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ लिगेंड्स, बच्चे नेचर ऑफ लिगेंड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, वी हैव टू सी दी स्ट्रेंथ, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग तो क्या होगा, देयर इज अ इंक्रीज इन delta value because strong ligands will cause more splitting, weak ligands will cause less splitting. So in case of fluoride to water to ammonia there is an increase in strength, and as well there is increase in the delta value, that is from 13 to 20,000 to approximately 22,000. And in the second example we are going from fluoride to water to cyanide. We know fluoride is the weakest, water is the middle, and then cyanide। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है एंड ऑब्वियसली फिर आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, दैट इज़ डेल्टा वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है बच्चे। सो दीज आर दी फैक्टर्स ऑन विच
डेल्टा डिपेंड्स। नाउ कमिंग टू टेट्राहेड्रल फील्ड। देखो बच्चे टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है, अभी तक जो आपने स्प्लिटिंग की है वो आपने ऑक्टाहेड्रल फील्ड में की है। नाउ कमिंग टू दी टेट्राहेड्रल फील्ड। टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होगा, वी हैव सेंट्रल मेटल एटम एंड नाउ यहाँ पर अगर आप देखो जो आपके लिगेंड्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं बच्चे, वो इन बिटवीन दी एक्सेस प्रेजेंट है। अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन दी एक्सेस। ठीक है, अब देखो क्या है, ऑक्टाहेड्रल में जो आपके लिगेंड्स थे वो ऑन दी एक्सेस थे, पर यहाँ पर इन बिटवीन दी एक्सेस हैं। तो अब क्या होगा, जो आपके ऑर्बिटल्स इन बिटवीन दी एक्सेस होंगे उनको ज़्यादा स्प्लिटिंग मिलेगी या उनको ज़्यादा उनके साथ रिपल्शन होगी एज़ कम्पेयर टू जो आपके लिगेंड्स ऑन दी एक्सेस हैं। ये क्लियर हुआ। जब आपके लिगेंड्स, अब यहाँ पर आपके लिगेंड्स क्या है, इन बिटवीन दी एक्सेस, तो जो आपके ऑर्बिटल्स इन बिटवीन दी एक्सेस हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन बिटवीन दी एक्सेस हैं, डी एक्स जेड, डी वाई जेड एंड डी एक्स वाई, ये ऑर्बिटल्स आपके इन बिटवीन दी एक्सेस प्रेजेंट है, तो इनको ज़्यादा रिपल्शन मिलेगी। ठीक है, इस वजह से इनकी जो एनर्जी होगी वो रेज हो जाएगी और ये आपका T2 लेवल आ जाएगा। ठीक है, और जो आपके ऑर्बिटल्स ऑन दी एक्सिस हैं अब उनको कम रिपल्शन मिलेगी, वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। ठीक है, और उनका जो लेवल होगा E, अब ये हमारा नीचे आ गया, दैट इज लोअर एनर्जी लेवल इज E एंड हायर एनर्जी लेवल इज T2। एंड नाउ अगर हम इसको एनर्जी के टर्म्स में लिखें, जो ये डिफरेंस होता है एनर्जी का, दैट इज डेल्टा T। ठीक है, और अगर आप इसको देखो EG एंड T2G लेवल की क्या एनर्जीज होंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको जैसे पता है, आपने देखा होगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो आपका T2 था वो आपका बिलो था और वहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस था दैट इज़ -4 dQ। बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो गया है, अब आपका 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज 4 dQ और इन टर्म्स ऑफ डेल्टा T वी कैन राइट 0.04 डेल्टा T। एंड जो आपका लोअर लेवल है वो अब क्या हो जाएगा बच्चे, आपका 6 dQ माइनस एंड माइनस 0.06 डेल्टा T। ठीक है बच्चे, ये हो गया। अब ये ऑपोजिट है विद द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और बच्चे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेट्राहेड्रल फील्ड में, जो आपकी ये एनर्जी होगी डेल्टा T वैल्यू, दैट इज ऑलमोस्ट 50% दैट ऑफ डेल्टा नॉट। ठीक है, सो लेट्स से इफ योर difference in the octahedral field is 90, then the difference in the tetrahedral field is 40। ठीक है बच्चे, अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो आपके लेवल्स के बीच का डिफरेंस है 90 है, तो टेट्राहेड्रल फील्ड में जो लेवल्स के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 40 होगा। ठीक है बच्चे, अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लेस नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है बच्चे, लेस नंबर ऑफ लिगेंड्स, कम ligands, कम interaction, कम repulsion and कम splitting। And second point is there is no direct interaction of ligands with orbitals, with d orbitals is less। देखो क्या है बच्चे, जब यहाँ पर क्या है, आपके जो लाइगेंड्स हैं वो इन बिटवीन दी एक्सेस प्रेजेंट है और जो आपके ऑर्बिटल्स भी हैं वो भी इन बिटवीन है, पर इन बिटवीन तो कहीं पर भी हो सकते हैं ना, तो इन बिटवीन में एज सच नहीं है कि एकदम डायरेक्टली वो एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्टली एक दूसरे को काउंटर करेंगे, जैसे कि एक्सेस पे होता है। एक्सेस पे तो आपको पता है ना, जैसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपने किया था, जो DX² माइनस Y² है वो एक्सेस पे था और आपका जो लिगेंड है वो भी, तो वहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही थी, पर यहाँ पर क्या है, दोनों इन बिटवीन है। अब इन बिटवीन वो इंट्रैक्शन तो होगी उनके बीच में, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, एंड दे ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन। अब हाई स्पिन क्यों होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो आपका डेल्टा T होता है दैट इज CFSE इज ऑलवेज लेस देन दी पेयरिंग एनर्जी। ठीक है बच्चे,
क्योंकि ये जो डिफरेंस होता है आपको पता ही है, वैसे ही ऑलमोस्ट 50% है, दैट इज़ ऑफ डेल्टा नॉट। और पेयरिंग एनर्जी क्या होती है इस केस में, ज़्यादा होती है, इसीलिए वो पेयर करना पसंद ही नहीं करते, वो अपना नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ दी ऑक्टाहेड्रल वर्सेस टेट्राहेड्रल। यहाँ से बच्चे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखो। दिस इज़ योर ऑक्टाहेड्रल फील्ड, दिस इज़ योर टेट्राहेड्रल फील्ड। नाउ यहाँ पर जो आपकी स्फेरिकल फील्ड है अब यहाँ पर सेपरेट हो रही है। इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड जो आपका ईजी लेवल है वो ऊपर जा रहा है, वेयर एज इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ईजी लेवल नीचे, ई लेवल नीचे आ रहा है। ठीक है बच्चे, ऐसे ही अगर आप देखो जो आपका T2G लेवल है वो आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डाउन को गया है, वेयर एज इन टेट्राहेड्रल फील्ड ये अप को। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट आपको दिखेगा ट्रेंड। ठीक है, जो आपके DXY DYZ DXZ है वो यहाँ पर यहाँ लाई कर रहे हैं, वेयर एज इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल DX² - Y² DZ² लोअर लाई करता है और ऑक्टाहेड्रल में ये हाई पे लाई करता है। ठीक है, ऐसे ही एनर्जी का भी अगर आप देखो ऑपोजिट है बिल्कुल। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू दी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। नाउ स्क्वायर प्लेनर में बच्चे आप ऐसे सपोज कर सकते हो, लेट्स से वी हैव लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड बच्चे ऐसे होती है, ये 4 लिगेंड्स ऑलरेडी हैं, 2 लिगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ क्या होता है, जो लिगेंड्स अलोंग दी जेड एक्सिस हैं, लेट्स से हम उसको पुल कर रहे हैं। ठीक है, वी आर पुलिंग देम। तो जब हम उसको पुल करेंगे तो क्या होगा, हम उसको स्ट्रेच करते जा रहे हैं और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि जब वो लिगेंड्स जो जेड एक्सिस पे थे वो रिमूव हो गए। तो जब लिगेंड्स जो जेड एक्सिस पे थे, जेड एक्सिस पे अब क्या होगा बच्चे, देर इज़ नो लिगेंड, एंड व्हेन देर इज़ नो लिगेंड देर इज़ नो रिपल्शन ऑन जेड एक्सिस। सो क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स जिनके अंदर जेड कंपोनेंट होगा लाइक DYZ DXZ और DZ², they will face less repulsion and they will get stabilized। ठीक है, एंड वो स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे एंड लो एनर्जी हो जाएगी उनकी। सो अगर आप देखो यहाँ पर यही चीज़ की हुई है हमने, अगर आपको विजिबल हो यहाँ पर आपके पास जो लेवल है इसमें जेड कंपोनेंट इनके पास है DYZ और DXZ, वेरस यहाँ पर जेड कंपोनेंट किसके पास है बच्चे, DZ² के पास। तो हमने बोला जिसके अंदर जेड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो आपके ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होके, दैट इज़ DZ² अब आपका यहाँ पर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, एंड सिमिलरली जो आपका DYZ और DZX हैं वो स्टेबलाइज हो जाएंगे और उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, वेयरएस जो आपके जिनके अंदर जेड कंपोनेंट नहीं था अब वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे और उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये क्लियर हो गया बच्चे। सो दिस फिनिशेस योर टॉपिक, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस।